हालेलुया। वचन में चलते हैं। Let's go into the word. इस घर में एक चीज जो प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति की, वो है कि आप की जो मेंटालिटी है वो बेचारे से एक शूरवीर योद्धा की हो जाए। What God wants is that the mentality of every person in this house, it would change from being a victim to being a warrior, a champion. Amen. The spirit of faith विश्वास का आत्मा will change your mouth from being a victim to a warrior. वो विश्वास का आत्मा आपके मुंह को एक बेचारे से एक जयवंत योद्धा में बदल देगा। हालेलुया। और मैं जानता हूँ खुदावन कोई इंसान नहीं जो झूठ बोले। And I know that the Lord God is not a man that आज he तक will उसने lie. हमसे जो भी कहा है वो 100% पूरा हुआ है। Whatsoever he has spoken to us till date has come to pass 100%. हाँ, मैंने यहाँ डांस नहीं किया आपके पास। मैं जब घर जाऊँगा दरवाज़ा बंद करूँगा अकेले में, तब डांस करूँगा इस वचन के लिए जो मिला है आज। I have not danced yet, but when I go home, I'm going to dance for the word that he has given to us today. क्योंकि हर बार जब खुदा का एक प्रोफेटिक वर्ड मुझे आया है, मैंने देखा है मेरे जीवन में क्या हुआ है। Because every time the prophetic word of God has come to me, I have seen what has happened to my life. और आज तो इस पूरे घर के लिए आया है, तो पकड़ लो उसे। And today this prophetic word has come for this entire house, so take hold of it. Amen. उसको हल्का ना जानो। Don't take this lightly. पौलुस कहता है तिमोथी को कि जो भविष्यवाणियां तेरे ऊपर हुई हैं उनको पकड़कर एक अच्छी आत्मिक लड़ाई लड़। Paul tells Timothy the prophecies that were done over you, take hold of them and fight a good fight of faith. ओके, सो पड़ोसी को बोलो पकड़ लो। Tell your neighbor, grab hold of it. हाँ, ओके, तैयार हैं आप वचन के लिए? Are you ready for the word? आइए एक प्रार्थना करते हैं। Let's pray. खुदावंद आज का वचन तेरी आत्मा से भरा हुआ हो। Lord God, let the word today be filled with your spirit. हमें सुनने वाले कान दे Give us ears that hear और समझने वाला हृदय दे। and a heart that understands. हम नम्रता के साथ तेरे वचन को ग्रहण करते हैं। We receive your word with meekness. तेरा आत्मा आज तेरे लोगों से बोले और बातचीत करे Let your spirit speak to your people today. यीशु के नाम में। In Jesus' name. हालेलुया। Psalm 11:3 भजन 11 उसका 3. The Bible says if the foundations are destroyed what can the righteous do? बाइबल कहती है अगर नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी जन क्या कर सकते हैं? Okay, every house is built on foundations. हर एक घर नींव पर बनाया जाता है. And if your foundations are not strong, your house will be in jeopardy. और अगर आपके घर की नींव मजबूत नहीं है तो घर जो है वो गिरने की स्थिति में हो जाएगा. Okay, आज कितने ऐसे मसीह हैं उनकी नींव स्ट्रांग नहीं है। There are many believers today whose foundation today is not strong. और अगर आपको जितनी ऊंची इमारत बनानी है उतनी ही स्ट्रांग फाउंडेशन बननी पहले जरूरी है। And if you want to make a tall skyscraper, you must first lay a solid foundation. सो आपकी आत्मिक जिंदगी आप कितनी ऊंचाई में जाओगे ये निर्भर करता है कि आपकी नींवें कितनी मजबूत हैं। So in your spiritual life, the height that you will attain depends on how strong your foundations are in the spirit. ओके, सो बाइबल कह रही है यदि नींवें ही ढा दी जाएं तो अगर राइचस लोग भी हैं, धर्मी लोग भी हैं, वो भी फिर कुछ नहीं कर सकते। The Bible is telling us if the foundation is destroyed, the righteous can then do nothing. ओके, ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में भी कुछ नींवें हैं, फाउंडेशन है। This is how there are some foundations in the kingdom of God. ओके, सो हम वचन से उसको देखेंगे। Hebrews 6:1-2। We will see them through the word. Hebrews 6, इब्रानी 6 उसका 1 और 2. ओके, इसमें लिखा है therefore leaving the discussion of the elementary principles of Christ, elementary principles of Christ. और यहाँ लिखा है इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। हाँ, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो होगा
ABC of the kingdom. साधारण शब्दों में वो राज्य का ABC होगा या शुरुआती बातें होगा. हाँ, आज चाहे कोई व्यक्ति डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियर है, उन सब ने पहले ABC सीखा. No matter if a person is a doctor or an engineer today, they have all learned ABC first. बच्चे को हम सीधे केमिस्ट्री नहीं सिखाते, We don't teach chemistry to the child directly. सीधे फिजिक्स नहीं सिखाते. Not physics directly. सबसे पहले चाहे वो बच्चे आगे जो भी बने, No matter what those kids will become in the future. सबसे पहले उन्हें क्या सिखाया जाता है? What are they taught first? एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्कूल. It's called elementary school. प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है उसको. तो उसमें क्या सिखाते हैं? What do they teach? ABC. प्राथमिक बातें ABC सिखाते हैं. तो यहाँ पे वचन कह रहा है Here the word is saying कि कुछ एलिमेंट्री टीचिंग है मसीह में, there are some elementary teachings in Christ. और वचन कह रहा है अब एलिमेंट्री टीचिंग के बाद हमें आगे परफेक्शन की तरफ जाना है. And now the word is saying we have to proceed forward from those elementary teachings towards perfection. मगर पहले But first, आरंभ की शिक्षा तो सीखनी है. we have to learn those elementary teachings. Okay, so let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works. हम सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने की, Faith toward God, परमेश्वर पर विश्वास करने की, of the doctrine of baptisms, बपतिस्मे की सिद्धांत शिक्षा की, of laying on of hands, हाथ रखने की शिक्षा, of resurrection of the dead, मरे हुओं के जी उठने and of eternal judgment. और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी. These are the 6 elementary teachings or the foundational pillars on which the entire teachings of Christ are built upon. ये वो 6 प्राथमिक शिक्षाएं हैं या नींव की शिक्षाएं हैं जिस पर मसीह के सारे सिद्धांत टिके हुए हैं. These are like 6 pillars if you can show that picture. ये वो 6 पिलर्स हैं. Okay. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 6 आरंभ की शिक्षा, इसका मतलब क्या है? So you have to know what these elementary 6 teachings mean. क्योंकि एक बार जब ये आपने सीख गए, उसके बाद आप आगे सिद्धता की ओर या परिपक्वता की ओर बढ़ोगे. Because once you learn these 6 things, then you will proceed towards perfection. Okay? ये एलिमेंट्री है. This is elementary. So हम देखते हैं सबसे पहले क्या है? Repentance from dead works. The first we see मरे हुए कामों से मन फिराना. मैं यहाँ नहीं जाऊंगा आज. I will not मैं go आपको here. कुछ और सिखाना चाहता हूँ. I want to teach you something else. So faith towards God. परमेश्वर पर विश्वास करना. बपतिस्मों के बारे में About doctrine of baptisms. सोचो, इतनी इंपॉर्टेंट ये जो शिक्षाएं, इनके बीच में पवित्र आत्मा ने डाला the doctrine of the laying on of hands. Imagine between these important teachings, Holy Spirit has put हाथ रखने की जो शिक्षा है उसको. The doctrine of laying on of hands. हाथ रखे जाने की जो शिक्षा है. You know why there is power is not manifesting in many churches? आप जानते हो बहुत से कलीसिया में परमेश्वर का सामर्थ्य क्यों नहीं काम कर रहा? Because they don't understand this doctrine. क्योंकि वो इस शिक्षा को नहीं समझते. Okay? So यहाँ बाइबल कहती है कि हम सिद्धता की तरफ जाते जाएं. We go towards perfection. Bible is saying we go towards perfection. ये शब्द जो है perfection, ये जो सिद्धता शब्द है, इसका ये जो ग्रीक में जो इसका मतलब है, जो शब्द है वो है टेलियोटेस. the Greek word for this is teleotis, टेलियोटेस का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते जाना. which means going upwards. जैसे एक बच्चा होता है, Like वो a आप child. उसे जब एलिमेंट्री स्कूल में डालते हैं, बढ़ता 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 क्लास 1 में जाता है, फिर 2 में जाता है, फिर 3. जो बच्चा क्लास में बढ़ता जा रहा है वो परफेक्शन, बाइबल के हिसाब से वो परफेक्शन में चल रहा है. A child is admitted, it starts with elementary school, but then they pass exams and go to the first, and they go on towards perfection. ऐसे ही हम लोगों को भी होना है. This is how we must be. बढ़ते जाना है. We must keep growing. ओके?
मैं आपको एक क्लासरूम की पिक्चर दिखाना चाहता हूँ. I want to show you the picture of a That classroom. Okay. So, all right. Yes, for that picture. अब ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर को देखो. इसमें टीचर कौन है? If you see this picture, who's the teacher ये here? टीचर दिख रहा है? हाँ? Can you see the teacher? क्या होगा अगर मैं आपको बोलूँ ये भी स्टूडेंट है? What if I'll tell you this is also a student? आत्मा में ऐसे दिखता है. This is how it is seen in the spirit. केवल अगर कोई शरीर में बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा में भी बड़ा है. If someone is grown in their body, doesn't mean they have grown in their spirit. Okay. So, अगर आप जो एलिमेंट्री है उसको नहीं सीखे तो आप आगे भी नहीं सीख पाओगे कुछ. If you do not learn that which is elementary, you will not learn the things in the future also. हमें बढ़ते जाना है. We have to keep growing. सो आज मैं बात करना चाहता हूँ द डॉक्ट्रिन ऑफ लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स. ये क्यों जरूरी है, क्यों बाइबल हमें बताती है नए नियम में, Today I want to talk about the doctrine of laying on of hands. Why is it important? Why does the Bible tell us about it? और क्यों आज कितनी कलीसियां हैं जहाँ पावर परमेश्वर का मैनिफेस्ट नहीं करता. And why the power of God is not manifesting in so many churches? उसके पीछे कारण है There is a reason behind it. क्योंकि वे आदि की शिक्षाओं को नहीं जानते. Because they do not know the teachings of the starting. ओके, सो 6 ये पिलर्स हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का घर बनता है. These are 6 pillars upon which the house of God is built. सो द लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, हाथों का रखा जाना, कोई मसीह रीति रिवाज नहीं है. Laying on of hands is not a Christian ritual. इट्स नॉट अ गुडविल जेस्चर. ये एक अच्छा किया हुआ काम नहीं है. हाँ, ये खाली हाथ खाली सरों पे नहीं रखा जाता. This is not an empty hand put on empty heads. इसके पीछे एक आत्मिक सिद्धांत है. There is a spiritual principle behind it. Why we do it? Why does the Bible tell us? हम ये क्यों करते हैं? बाइबल हमें क्यों कहती है ये करने को? Okay, it's first of all you should understand that laying off on hands ये पंजाब से नहीं आया, ये बाइबल से आया है. पहले आपको समझना है कि हाथ रखा जाना, this has not come from Punjab, it has come from the Bible. It's a biblical doctrine. ये Okay. एक बाइबल की शिक्षा है. हाँ, के लोग सोचते हैं ये क्या जरूरत है करने की. Some तो people बाइबल think- से आज हम सीखेंगे क्या जरूरत है करने की Some people think, why is it important? और Today we क्यों will हम learn. करते हैं And why do we do this? और क्या होगा जब ये होगा. And what will happen when this happens? ओके, हालेलुया. सो जो हाथ है ना पुराने नियम में, नए नियम में जो हाथ है, ये है एक माध्यम ट्रांसफर का. किसका? ट्रांसफर का. In the old covenant and the new covenant, hand signifies a medium of transfer. पुराने नियम में भी हम बोलते हैं द हैंड ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन समवन. जब परमेश्वर का हाथ किसी के ऊपर आता था तो बहुत बारी बाइबल बताती है कि एक ट्रांसफर होता था. Even in the Old Testament, we see the hand of the Lord came upon someone, and when the hand of the Lord came, there was a transfer. इससे ट्रांसफर होता है ब्लेसिंग, Blessings are transferred through this. हीलिंग, Healings are transferred. इम्पार्टेशन Impartation takes place. एंड ऑर्डिनेशन या कमीशनिंग. और सेवकाई के लिए ठहराया जाना, नियुक्त किया जाना होता है. फिर से मैं आपको कह रहा हूं ये रीति रिवाज नहीं है, इस बात को समझो. This is not a ritual. कई लोग आज प्रभु भोज रीति रिवाज की तरह लेते हैं, इसीलिए उनके जीवन में उसका कोई लाभ नहीं होता. Many people take communion as a ritual and it has no benefit for them. जो कुछ आप रीति रिवाज की तरह करोगे उसमें कोई जीवन नहीं है. Whatever you will do as a ritual has no life in it. ओके, सो हम रीति रिवाज की तरह उसको नहीं करते. So we don't do it like a ritual. सबसे पहले ये दर्शाता है ब्लेसिंग को ट्रांसफर करने के लिए. Firstly, it represents blessing being transferred. क्या दर्शाता है? What does it signify? ब्लेसिंग आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने हाथ से. You can transfer blessing with your hand. कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? How many are hearing? आप ब्लेसिंग को ट्रांसफर कर सकते हो अपने हाथ से. You can transfer blessing through your hand. ओके, जेनेसिस 27 में हम पढ़ते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी नहीं है. We don't have time for it. मुझे जल्दी से आपको सिखाना पड़ेगा क्योंकि फिर मुझे 7-8 हज़ार लोगों के ऊपर ले हैंड करना. I'll teach you quickly, then have to lay hands on 70,000 people. ओके, सो
आइजैक ने जेकब के ऊपर हाथ रख के ब्लेसिंग रिलीज करी. Isaac laid hands on Jacob and blessed him. ओके, वो रीति रिवाज नहीं था, It was not a ritual. वो जानते थे. They knew. जेकब ने हाथ रखकर अपने और बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग रिलीज करी. Jacob put his hands on his children and blessed them. सो ब्लेसिंग रिलीज करी जा सकती है. Blessing can be released. ओके, सो जब कभी हाथ रखा जाता है, Whenever hand is laid, ब्लेसिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड. blessing transfer हो सकती है. ब्लेसिंग कार, बड़ा घर, ये सब नहीं है, ये ब्लेसिंग का प्रगटीकरण है. Blessing is not a big house or a big car. They are just manifestations of blessing. ब्लेसिंग इनविजिबल है. Blessing is invisible. ओके, एक व्यक्ति जो खुदा की तरफ से ब्लेस्ड है, A person who is blessed from God वो ब्लेसिंग को रिलीज कर सकता है. can release blessing. ओके, इसीलिए एल्डर्स की ब्लेसिंग जो आत्मा में परिपक्व हैं, उनकी टैंजिबल होती है वो ब्लेसिंग, वो ऐसी रीति रिवाज नहीं. This is why the blessing of elders is tangible. It is manifested. कैन यू पुट Hebrews 7:7? मैं चाहता हूं आप इब्रानी 7:7 को देखो. Hebrews 7:7. यहां क्या लिखा है? Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. इसमें कोई संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है. अब क्या हुआ है What has happened in the Western culture Western culture में, where there is a flat culture, so everybody is equal, जहाँ पर फ्लैट कल्चर है, सब कोई बराबर है, and it's simply pride. और ये सिर्फ घमंड को दर्शाता Because people cannot humble themselves when they see somebody who in the spirit walks in a greater authority. है. क्योंकि ये लोग अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते जब वो किसी ऐसे से मिलते हैं जो आत्मा में उनसे ऊंचे अधिकार में चलता है. I had told you about me. Whenever I see somebody who in the spirit walks ahead of me, I quickly humble myself and position myself so that I can receive from them. मैंने आपको अपने बारे में बताया था, जब मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं जो मैं परख लेता हूं कि आत्मा में मुझसे ऊंचे अधिकार में चल रहे हैं, तो मैं अपने आप को जल्दी से उस जगह पे रख लेता हूं कि मैं उनसे ग्रहण कर पाऊं. क्योंकि देखो, ये जो स्टेज है ना, इसका जो लेवल है ये बराबर है. This stage is leveled. It is at the same level. अगर मैं यहाँ तेल उंडेलूंगा If I pour out oil here, तो ये यहीं नहीं जाएगा, it will not flow यहीं anywhere. रहेगा. It will stay here. तेल ऊपर से नीचे बहता है. Oil flows from top down. ओके, तेल ऊपर से नीचे बहता है. Oil flows top down. बाइबल कह रही है विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन द लेसर इज ब्लेस्ड बाय द बेटर. बाइबल कहती है इसमें कोई संदेह नहीं, कोई विवाद नहीं कि जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है. That means if the one who is better in the sense of that he has something God has given him, he has something tangible, he can release it to somebody who is growing. इसका मतलब अगर कोई बेहतर है या किसी ने परमेश्वर से कुछ पाया है तो वो उस बात को उस व्यक्ति पे उंडेल सकते हैं जो बढ़ रहा है. Amen. इसीलिए आप इनहेरिटेंस पा सकते हैं ऑनर के द्वारा. This is why you can receive inheritance through honor. ओके, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, What you are seeing है, मैंने बहुत कुछ पाया है परमेश्वर के दासों का आदर करके. what you are seeing here, I have received a lot by honoring different men of आज God. भी करता हूँ और दुनिया कुछ भी बोले अपनी आखिरी सांस तक करूंगा. Even today I honor men of God, and no matter what people say, I will honor them to the last breath. ओके, अगर मुझे कोई ऐसा पास्टर मिले, भले ही उनके चर्च में 40 लोग आते हैं, If I meet a pastor like that, maybe 40 people come to their church. but if in the spirit अगर आत्मा में I discern मैं परख लूं that he holds a higher rank, कि वो मेरे से ज्यादा ऊंचे रैंक में I'll है, quickly submit मैं जल्दी से अधीन कर लूंगा अपने आप को, and I'll position myself that I can receive from him. और अपने आप को उस स्थान में रख लूंगा उनसे ग्रहण करने के लिए. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand? जो घमंडी है ना, उनको उनके लिए कुछ नहीं है राज्य में. मैं पहले ही क्लियर आपको बता रहा हूँ, घमंडियों के लिए केवल खोखला ज्ञान है. वो ज्ञानी तो होंगे मगर उनके जीवन में कोई फल नहीं होगा. I'm telling you, there is nothing for the prideful in the kingdom. They will have knowledge for knowledge's sake, but there will be no fruit in their life. आप जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि उनका विरोध स्वयं परमेश्वर करता है. Because God Himself is resisting them.
The Bible says God gives more grace to those who are humble, but he resists the proud. बाइबल कहती है परमेश्वर जो नम्र है उसको और ज्यादा अनुग्रह देता है, पर घमंडियों का वो विरोध करता है स्वयं. Okay? So, आप सब लोगों को पता है कि कैसे मुझे परमेश्वर की आई हैड एन एनकाउंटर, परमेश्वर मेरा साक्षात्कार हुआ जब प्रभु ने कहा जब तक तू जिएगा तू लैक को, कमी घटी को नहीं देखेगा. You all know as I encountered the Lord one day and he said, as long as you will live, you will not know lack. हर एक जो परमेश्वर के लोग हैं जो उसके साथ, खुदा के साथ चलते हैं, जब उनका एक एनकाउंटर होता है परमेश्वर उनको एक प्रतिज्ञा देता है. All the different men of God, when they encounter God, God gives to them a covenant. और उस प्रतिज्ञा के साथ वो स्पेसिफिक ग्रेस आता है. And with that covenant comes that specific grace. ओके और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मैंने प्रार्थना करी है और अपने पूरे दिल से मैंने ये प्रे करी कि प्रभु वही अनुग्रह जो तूने मुझे, मेरी वाइफ को दिया. कितने पास्टर्स जो हमारे पास आते हैं, मैं आत्मा से ये ब्लेस करता हूँ खुदावन, जैसे तूने मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ किया, वो प्रभु इनके साथ भी कर. And many people I have prayed for them with all my heart. Many pastors that have come, I have released this grace over them. Lord, as you have done with me and my wife, may you do it with them. ओके करने वाला पवित्र आत्मा है. It is the Holy Spirit who does it. मगर हम हाथ का रखा जाना एक प्रोफेटिक सिग्निफिकेंस है, एक भविष्यवाणी की तस्वीर है, एक ट्रांसफर किया जाता है. But the laying on of hands is a prophetic picture of a transfer. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो I'll आप give you an समझोगे. example. ओके ऑलराइट. सो सपोज आपकी छत में पानी की टंकी है दो, Suppose there are two water tanks on your roof और ये कनेक्टेड हैं. and they are connected. एक में ज्यादा पानी है और एक में कम पानी है. One has more water, the other has less water. क्या होगा What will happen? जब वो कनेक्टेड हैं? If they are connected, तो जिसका लेवल ज्यादा है उस लेवल से कम लेवल में पानी बहेगा. the one with the greater level, water will flow from that to the one with lower level. यही आत्मा में भी होता है. This is what जब आप happens in the आत्मा में spirit. कनेक्ट हैं और जहां लेवल कम होता है वहां बहाव चला जाता है. When you are connected in the spirit, wherever there is lower level, the flow goes there. दूसरा एग्जांपल देता हूं Second जिनको example. जो पानी की टंकी नहीं समझते. Those who don't कार understand. what आपका बैटरी का चार्ज चला गया है, I mean. Your car has no battery charge. आप चाबी घुमा रहे हैं मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही. You're trying to start it, but it's not. तो हम starting. क्या करते What हैं, do we एक do? वो बैटरी लेके आते हैं जो फुल है We bring a battery that's full और जंप स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, and we jump start that car. कनेक्ट करते हैं तार से, We connect the cables. और जैसे ही कनेक्ट करते हैं As we connect, जो भरी हुई बैटरी है उससे चार्ज चला जाता है खाली बैटरी में और कार स्टार्ट हो जाती है. the full battery gives charge to the battery that is discharged and the car starts. हाँ ये तार है. This is a wire, a cable. ये तार का काम करती है आत्मिक जगह में. This works like a cable in the spirit world. ओके ट्रांसफर. दूसरा इसके Second. बाद में आपको मैं लेइंग ऑफ ऑन हैंड से आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हो. हाथों by the laying on of hands you can transfer authority. ओके मैं आपको बाइबल से दिखाता हूँ. मैं जल्दी से चीज़ें बता रहा हूँ. Numbers 27:18. Numbers 27:18. मैं बाइबल से आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ. And the Lord said to Moses, take Joshua the son of Nun with you, a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him. यहोवा ने मूसा से कहा तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख और वह ऐसा मनुष्य है जिसमें मेरा आत्मा बसा है. ओके परमेश्वर क्या कह रहा है मूसा को? What is God telling यहोशू के ऊपर क्या कर? Lay your hands on him. अब कई जो धार्मिक ईसाई है ना बोलेंगे खुदा नहीं रख सकता हाथ उसके ऊपर. Many religious people will say, can God not lay hands on him? पर वो खुदा ही कह रहा है कि मूसा तो अपना हाथ रख यहोशू पे, But God himself is telling Moses to put hands on क्योंकि Joshua. उसने अपने राज्य में कुछ सिद्धांत बनाए हैं Because he has made some principles और in वो his अपने kingdom. सिद्धांतों के विरोध में नहीं जाएगा. And he will not go against his own principles. ओके और क्या हुआ And what happened? जब मूसा ने ये बात को माना और यहोशू के ऊपर हाथ रखा तो क्या हुआ? When Moses obeyed and kept hands on Joshua, what happened? 20th वर्स में 20वीं आयत.
क्यों कह रहा है परमेश्वर कि हाथ रख तो क्या होगा? आगे देख पढ़ो. Why is God saying this? And you shall give some of your authority to him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient. और अपने अधिकार में से, हिंदी में महिमा लिखा है, बट अपने अधिकार में से कुछ उसे दे जिससे इजराइल की सारी मंडली उसकी माना करे. Okay, God told him, you can give authority to Joshua by laying on of hands. परमेश्वर ने मूसा से कहा तू हाथ रखकर अधिकार उसको दे सकता है. Deuteronomy 34:9. Now Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे. So मूसा का यहोशू के ऊपर हाथ रखे जाने से क्या हुआ? बुद्धिमानी का आत्मा यहोशू के ऊपर आ गया. What happened when Moses laid hands on Joshua? The spirit of wisdom came upon him. अगर खुदा का कोई दास आपके ऊपर हाथ रखता है और उन आपका दिल सही जगह में है, तो वो आत्मा जो उनके ऊपर है वही आत्मा आपके ऊपर भी आता है. If a man of God lays his hands on you and you are postured in the right place, the same spirit that is upon them will come upon you. Okay, so divine authority impart होती है. अलौकिक अधिकार. All right, laying off on hands, you can impart the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा दे सकते हैं हाथ रख करके. Acts 8:14 to 17. प्रेरितों के काम. Now what has happened is, Philip as an evangelist, he has gone to Samaria. क्या हुआ? फिलिप एक प्रचारक के रूप में समरिया गया. वहाँ बड़े बड़े काम हुए, लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया. People received Jesus. और जब उन्हें पता चला कि वहाँ पर एक रिवाइवल आ चुका है, And when they knew there was a revival there, देखो जो प्रेरित यरूशलेम में थे, जब उन्होंने सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा. उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था. उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था. तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया. अभी इंग्लिश में रहने दो, ठीक है? क्या हुआ फिर? उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा पाया. कब पाया? जब पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? उन सामरियों के ऊपर हाथ रखे. they received the Holy Spirit when Peter and John laid hands on them. ओके, यहां तक कि वहां पे एक जादूगर था जो प्रभु में आ गया. There was a magician there who came. वो भी देख रहा है इस बात Even को. he's seeing this. तो एक्ट्स 8:18-19 में जब शमौन वो जादूगर है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, क्या देखा उसने? What did Simon see? कम ऑन टॉक टू मी. क्या देखा उसने? कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता By the है. laying of hands of the apostles, Holy Spirit is given. तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, They brought money and said, "Give me this power also, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए. that whom I lay hands on would receive the Holy और Spirit." पतरस ने उसको बोला, तू कपटी शैतान के बच्चे, And Peter told him, "You son of ध्यान devil." से सुनो, Here, here. न ले हैंड के लिए कभी पैसे देना, न पैसे दे के ले हैंड कभी करवाना. Don't ever give money for lay hands and never get hands laid on you by giving money. जो पैसे लेता है ले हैंड के, वो खुदा का सच्चा दास नहीं है. Anyone who takes money for laying hands is not a true man of God. ओके, और आप भी कभी पैसे दे के अगर कराते हो तो आप निर्बुद्धि हो. And if you ever get hands laid on yourself by giving money, you are wisdomless. आप परमेश्वर के काम को खरीद नहीं सकते. You cannot buy the works of God. ओके, पतरस ने उससे कहा, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, Peter told him, "Your money perish with you." क्योंकि परमेश्वर का दान खरीदा नहीं जा Because सकता. the gift of God cannot be आप purchased. पैसे से नहीं खरीद सकते, केवल आदर से और नम्रता से ग्रहण कर सकते हो. You cannot buy it with money. You can only receive it with honor and humility. Amen. Hallelujah. Then जब पतरस जो सॉल था, जब वो पॉल बना और उसका साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, When Saul became Paul, had an encounter with और वो Lord 3 दिन Jesus. के लिए अंधा हो गया. For 3 days he was blind. और प्रभु यीशु मसीह एक चेला जो अनानियस है उसके पास दर्शन से आए. And Jesus came to disciple Ananias. और प्रभु ने उसको एक आज्ञा दी. And the Lord gave him a command. प्रेरितों 9:17,
तब हनन्याह उठकर घर में गया और उसने अपना हाथ रखकर, उसने पौलुस के ऊपर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया है तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. He told, the same Lord who appeared to you on the road has sent me so you may receive sight and be filled with the Holy Spirit. Okay. Acts 19:6. When Paul laid hands on them, the Holy Spirit came upon them. जब पौलुस ने उन पे हाथ रखे, पवित्र आत्मा उन पे आ गया. अब मैं सारे आयतों में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बस बता रहा हूं बहुत सारी आयतें हैं जिसमें जो परमेश्वर के लोग हैं, जब उन्हें हाथ रखा तो पवित्र आत्मा लोगों ने पाया. There are many biblical references that people received Holy Spirit when hand was laid on them. अब दूसरा एक और कारण है जिससे हाथ रखे जाते हैं, चंगाई प्रदान करने के लिए. There is another reason for laying on of hands, and that is to heal the sick. लूका 4:40. सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें यीशु के पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया. He laid his hands on every one of them and healed them. ओके, आप देख रहे हो नए नियम में कितना ज्यादा है हाथों का रखा जाना. You're saying how much we find. पुराने नियम में बहुत ज्यादा है हाथों का रखा जाना. Even in the Old Testament we find a lot of this. मरकुस 6:5. Mark 6:5. वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया. He laid hands on a few sick and healed them. सो यीशु मसीह ने क्या कहा? कुछ बीमारों के ऊपर हाथ रखा, सबके ऊपर क्यों नहीं रखा? He laid hands on a few. Why not all? Because their hearts were not right. क्योंकि उनके दिल सही नहीं थे. सबके ऊपर नहीं रखा. He didn't lay hands on all. ओके, कुछ के ऊपर On some. रखा. मरकुस 16:18 में क्या लिखा है? Believers that they will lay hand on the sick and they will recover. वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे. विश्वासियों के लिए लिखा है. कितने लोग विश्वासी हैं यहाँ पे? How many believers here? If you are a believer, show me your hand. अगर आप विश्वासी हो तो अपना हाथ दिखाओ. Then God has given you an instruction तो प्रभु ने आपको एक निर्देश दिया है that you can lay hand on the sick कि आप बीमारों पे हाथ रखोगे and they will recover. और बीमार चंगे हो जाएंगे. This promise is for everyone. ये वायदा हर एक के लिए. ये वादा हर एक के लिए है. This is for everyone. Now, we are running short of time, but मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये शिक्षा की अगर हाथ रखा उनकी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आ जाएगी, ये फॉल्स टीचिंग है नरक के पिट से, ये बाइबल से नहीं है. This teaching that if you lay hands on someone, if they have a demon, that demon will come upon you. This is a false teaching from the pit of hell. It's not biblical at all. It's a fear-based teaching. ये डर से भरी हुई शिक्षा That has no biblical foundation. जिसका बाइबल से कोई लेना देना There नहीं is है. no verse where it says a believer laid hand on an unbeliever and the demon from unbeliever or somebody came to them. एक भी वचन ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी ने किसी पे हाथ रखा जिसमें दुष्ट आत्मा था और वो दुष्ट आत्मा विश्वासी में आ गया. हाँ, ये म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है. This is not like mutual fund. That believers will lay hand on the sick and they will recover. Asterisk mark. Read the offer document carefully before investing. कि विश्वासी बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे. बाकी शर्तें लागू हैं, ध्यान से पढ़ लेना. शर्तें क्या हैं? हाथ रखना, बीमारों पे चंगे हो जाएंगे, मगर क्या पता उनकी दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे ऊपर आ जाए. Oh, lay hands on the sick, they will recover. But how do you know their demons might come on you? है ना? क्यों शैतान ने ये टीचिंग डाली कि आप क्या ना करो? क्या ना करो? हाथ ना रखो, क्योंकि हाथ रखोगे तो क्या होगा? वे चंगे हो जाएंगे. वे चंगे हो जाएंगे तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा. शैतान नहीं चाहता, तो क्या करो? डर डाल दो आपके अंदर. Why did the devil bring this teaching so that you don't lay hands on the sick? Because if you laid hand, the sick will recover and the kingdom of God will grow, which the devil does not want. So he brings a fear-based teaching like this. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सिद्धांत क्या है? खाली टंकी से ऊपर नहीं आ सकता पानी. What is the principle? An empty tank cannot give water upwards. कम लेवल से ऊपर लेवल नहीं जा सकता. From a lower level to a higher level you cannot. आपके अंदर कौन है? Who lives in you? कौन रहता है आपके अंदर? Who lives inside of you? प्रभु यीशु मसीह. Lord Jesus. उनके अंदर क्या है? एक दुष्ट आत्मा. मुझे बताओ कौन बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह या दुष्ट आत्मा? What is in them? A demon. So what is greater, Lord Jesus or a demon? तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आएगा या आपके अंदर से सामर्थ उस दुष्ट आत्मा को भगा देगा? So will the demon come upon you or will the power in you leave, make that demon leave?
Put 1 John 4:4. The Bible says, greater is he who is in you than he who is in the world. पहला यूहन्ना 4:4, महान है वो परमेश्वर जो तुम्हारे अंदर है उससे जो दुनिया में है। So I want you to be fully convinced. पूरी तरह इस बात में When आश्वस्त हो I जाओ, will lay hand on the sick, they shall recover. जब मैं बीमार पे हाथ रखूंगा तो वो चंगा हो जाएगा। डरना नहीं है। Don't be afraid. फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, पर आपको पता है स्कीवा के बेटों के साथ क्या हुआ? Then they give an example. You know what happened to the sons of Sceva? अरे स्कीवा के बेटे प्रभु में नहीं थे। The sons of Sceva were not in the Lord. They were not saved. पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। वो उद्धार पाए नहीं थे। The Holy Spirit was not in them. Amen. मगर स्कीवा के बेटे जैसे क्या बाइबल किसी भी विश्वासी के लिए बताती है कि दुष्ट आत्मा ने किसी विश्वासी को भगा दिया मार के? But does the Bible say for any believer that the demons beat them up and made them run away? No. नहीं. Greater is he who is in you than he who is in the world. महान है वो जो तुम्हारे अंदर रहता है उससे जो दुनिया में है। मेरे पीछे बोलो, greater is he who is in me than he who is in the world. मेरे साथ कहो, महान है वो जो मुझ में रहता है उससे जो दुनिया में है। कभी आपने देखा है, आप पहाड़ में रात को अगर गाड़ी चला रहे हो, अगर चला रहे हो और दूसरे पहाड़ में एक छोटी सी बत्ती है, हजारों किलोमीटर का अंधकार है, मगर एक छोटी सी बत्ती हजारों किलोमीटर को भी चीरती हुई आ जाती है, इतनी ताकत लाइट में है। When you drive in the hillside, in the hilly areas, and you're driving and you see far across the valley there's a small light, you will see it across thousands of kilometers of darkness. That light will penetrate through it. The light is so powerful. Even a tiny light can penetrate thousands kilometers of darkness, and you can see it from the other mountain. प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि हजारों किलोमीटर की जो अंधकार है उसको भेदते हुए पहाड़ी के दूसरी ओर आपको दिखाई देगा। अरे आपके अंदर तो वो रहता है जो खुद प्रकाश है। The one who lives inside of you himself is the light. Amen. तो कभी डरना नहीं है, ओ दुष्ट आत्मा है ना। Never ever be afraid. हाँ, ये ट्रेडिशंस, ये टीचिंग एक्सपीरियंस से आई, बाइबल से नहीं आई। These teachings came from experience, not from the Bible. बहुत फेमस है टीचिंग, It's very famous. इसने डरपोक बना दिया है मसीहों को। This has made believers cowards. They will lay hand on the sick and they will recover, full stop. That's it. वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, पूर्ण विराम, बात यहीं खत्म। Amen. बोलो, जब मैं अपने हाथ बीमारों पे रखूंगा वे चंगे हो जाएंगे। बोलो, ऐसा ही होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, और जो वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर वचन में लिखे हुए का एक बिंदु भी ना टलेगा, यीशु के नाम में। हालेलुया, आमेन। ओके, सो कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you understand? सो ये इन टीचिंग्स को नहीं मानना है, Don't believe in these teachings. क्योंकि इसका कोई, जो भी मैं आपको ये कह रहा हूं और मैं आपको अपने लिए जो भी हम सिखाते हैं यहां से, I'm telling you, whatever we teach from here, अगर बाइबल में ना मिले तो मत मानना। if you don't find it in the Bible, don't believe it. एक भी वो चीज ना मानना जो इस पुलपिट से सिखाई जाती है जो बाइबल में ना हो। Don't believe a single thing that is taught from this pulpit that is not from the Bible. आमेन। क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी उसका वचन है। The greatest authority is the word of God. ओके, उसका वचन है, His word. हमारे ट्रेडिशन नहीं है, Not our tradition. हमारे रीति रिवाज नहीं है, Not our ritual. उसका वचन है। His word. उसके वचन में यीशु ने कहा, विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। His word said, these signs will follow those who believe. They will lay hands on the sick and the sick will recover. ओके, और अगर डर लगता है And if you feel afraid, तो पहले प्रभु में बढ़ो। then first grow in the Lord. एक और चीज, लेइंग ऑफ ऑन हैंड्स से आत्मिक गिफ्ट जो हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। Spiritual gifts can be imparted by laying of hands. सो
पहला तिमोथी 4:14, जो वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते हुए तुझे मिले थे, निश्चिंत मत रहे. Do not neglect the gift that was in you, which was given to you by prophesying with the laying on of hands of the eldership. The gifts were given to you by prophesying, by the laying on of hands. वो हाथ रखकर भविष्यवाणी कर कर तुम्हें वो वरदान मिले. 2 Timothy 1:6. दूसरा तिमोथी 1:6. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Timothy, Paul is saying. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे. पौलुस कह रहे टिमोथी को. एक परमेश्वर की दासी है, अब वो प्रभु के पास चली गई. One woman of God who's gone to be with the Lord. एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया. One day she called me. जब मैं करीबन 20-21 साल का था. I was roughly 20-21. उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा She laid hands on my head और एक भविष्यवाणी करी. and prophesied over me. और उन्होंने कहा कि the gift of the working of miracles And she said, चमत्कारों को करने का वरदान प्रभु तुझे दे रहा है. God is giving to you. जो आप यहाँ देख रहे हो ओवरी बनते हुए, ये चंगाई नहीं है, ये मिरेकल है. What you are seeing here happening, ovaries being formed, is not a healing, it's a miracle. Amen. And I received it that day. और मैंने उस दिन ये पाया था. हाथ रखे जाने को तुच्छ मत समझो. Don't take laying on of hands lightly. Divine transfers are done when laid hands are laid. अलौकिक ट्रांसफर होते हैं जब हाथ रखे जाते हैं. वो प्रभु की दासी आज स्वर्ग जा चुकी हैं. That woman of God is in heaven now. मगर जो उन्होंने इम्पार्ट किया आज हम उसका फल देख रहे हैं. But what she imparted today, we are seeing the fruits of it. Okay? So Paulus Timothy को कह रहा है, Paul is telling वो Timothy. कह रहा है मैंने हाथ रखे तिमोथी तब तुझे वरदान मिला. He's saying, Timothy, I put my hands on you. That's how you got this. अगर कोई आज ऐसा बोलेंगे देखो कितना घमंडी आदमी है. If someone says this today, people will say how proud this man is. रोमन 1:11 में देखो पौलुस क्या कह रहा है. वो कह रहा है क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं. I may impart to you spiritual gifts. So Paul knew that he can impart spiritual gifts to people. पौलुस ये जानता था वो आत्मिक वरदान दे सकता है हाथ रख के. So हाथ रखने से आत्मिक वरदान ट्रांसफर हो सकते हैं. Spiritual gifts can be imparted by laying hands. Okay. मृणालिनी है यहाँ पे. Yeah, can you stand up? So okay. Mini I mean like among all the thousands of lives that I've seen transform, हजारों जीवन जो मैंने बदलते देखे हैं, her life stands out उनका जीवन मुझे अलग नजर आता है. because I knew Minnie as a very casual Christian. मैं मिनी को एक बहुत ही गुनगुनी मसीह की तरह जानता था. Okay, very casual. बहुत ही casual. और एक दिन मिनी आई One day she came. and the Lord put in my heart to lay hands on her. प्रभु ने मेरे दिल में डाला उस पे हाथ रखा. And the moment I laid hands on her, जैसे मैंने हाथ रखा, it was so tangible. I knew that something has transferred. वो इतना प्रकट था, मैं जानता था कुछ ट्रांसफर हुआ है. And वो दिन है, That day, from that day, since I mean like you guys know it, right? Her life has transformed 180 degree. उनकी जिंदगी 180 डिग्री घूम गई. She is a firebrand for the Lord. वो प्रभु के लिए आग से जलती हुई गवाह है. Amen. So, see, understand, it's not me. मैं नहीं हूँ, I'm just a vessel. मैं एक बर्तन हूँ, But it's the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा है. Okay? So, अगर सही हृदय से आप इसको समझें If you understand this with the right heart और आप रिसीव करें, and receive it, आप वो रिसीव कर सकते हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता. you can receive what money can never buy. ओके अब ध्यान से सुनो. इनहेरिटेंस क्या होती है? मैंने मेहनत करी अगर किसी चीज के लिए If I labored for something और मैंने कुछ कमाया and I earned something और मैंने घर बनाया. and I made a house, अब मेरे बच्चों को एलियाना, अमाया और जूडा को मेहनत नहीं करनी उस घर में रहने के लिए. उन्हें मिरास में वो घर मिला है. now my children Eliana, Maya, Judah don't have to labor to live in that house. They got it by inheritance. कई परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने सालों परमेश्वर के साथ घंटों बिताए, उनको परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया, मगर वो लोग जो सही तरीके से अधीनता में आए उन्हें वो मिरास की तरह वो अनुग्रह में मिल गया. Many men and women of God labored for hours and years in the presence of God, and they got an inheritance which many people, when they submitted to them, they received it.
ओके, ये किंगडम है. This is the kingdom. सो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इम्पार्ट कर सकते हैं. आत्मिक वरदान. अब मैं एक और चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इससे पहले हम प्रार्थना करें. One more thing I want to clarify before we pray. कई बारी ये लोग कहते हैं अगर आपने किसी से हाथ रखवा लिया तो उनके जीवन में जो पाप हैं आपके ऊपर आ जाएंगे. Sometimes people say if someone lays hands on you, the sins in their life will come into your life. ये भी एक अनबिब्लिकल टीचिंग है. This also is an unbiblical teaching. क्योंकि अगर ऐसा है तो कोई भी इंसान सिद्ध नहीं है जो आपके ऊपर हाथ रख सके. Because if that is the case, not even one person is perfect who can put their hands on you. ओके, वो एक वर्ड्स को गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं. They misunderstand a verse, misinterpret. जो ऑर्डिनेशन के लिए बोला गया है. Yeah, which is for ordination. मैं आपको पढ़ के बताता हूँ Let me read it for you. सो दैट आप अंडरस्टैंड करें उसको. जो है 1 तिमोथी 5:22. 1 Timothy 5:22. Do not be hasty in the laying on of hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure. किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना. कॉन्टेक्स्ट क्या है? बाइबल किस बारे में बोल रही है उसको पढ़ो ध्यान से. What is the context? What is the Bible talking बाइबल ये about? नहीं कह रही हाथ मत रखो किसी के ऊपर. Bible is not saying don't lay hands बाइबल on कह anyone. रही है किसी को जल्दी से ऑर्डेन मत करो एक लीडर की तरह. Bible is saying don't ordain someone a leader quickly. मैं आपको उदाहरण देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई व्यक्ति आया और मैं उनके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता और मैंने एफओएलजे एक कलीसिया दूसरे शहर में खोली. मैंने सबके सामने उनको ऑर्डेन कर दिया, आज से ये एफओएलजे के पास्टर हैं. अब वो व्यक्ति वहाँ जाके व्यभिचार में जीता है तो क्या होगा? मैं अब उसके पापों में शरीक हो गया, क्योंकि लोग बोलेंगे एफओएलजे पूरा ऐसे ही है. If a new person came and I ordained them and sent them as a pastor for one of FLJ branches and they went and lived in adultery, everybody will say this is how Apostle Ankit is because this is how this man is. कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, क्या कहना चाह रहा है? पौलुस बात कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेशन. लीडरशिप में ऑर्डेन करना भी हाथ रख के किया जाता है, जो आज नहीं किया जाएगा, इसीलिए क्लियर कर रहा हूं. Paul is talking about ordination. Even leadership is ordained by laying on of hands, which will not be done today. ओके, आज आप सबके ऊपर हाथ रखा जाएगा, मगर किसी लीडर को ऑर्डेन नहीं करा जा रहा है आज. When hands are being laid, no one is being ordained as a leader. आमेन. सो फोटो खींच के मत बोल देना मुझे ऑर्डेन कर दिया है पास्टर के लिए. So don't use that as a photo and say I'm ordained as a pastor. ओके, बाकी सारी चीजों के लिए है. For all the other things it is there. प्रेतों के कार्य 6:5 से 6. ऑलराइट, इसमें लिखा है जो 7 लोग थे जिनको अलग किया गया, और वहां पे मैं जल्दी से आपको बताता हूं. 6वीं में लिखा है प्रेतों ने इनके सामने खड़ा किया, उन्होंने प्रार्थना कर कर उन पर हाथ रखा. They laid hands and prayed for them. Acts 13:2-3. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said. प्रेरितों के काम 13:2. जब वो उपवास प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा ने कहा. किसने कहा? Who said? कितने लोग उठे हुए हैं इस जगह में? How many people are awake? हाँ, किसने कहा? Who said this? पवित्र आत्मा ने कहा. The क्या Holy कहा Spirit पवित्र said. आत्मा ने? What did the Holy Spirit say? Separate to me Barnabas and Saul. मेरे लिए बारनबास और शाऊल को अलग करो. Hear this. Holy Spirit needs men to separate people into ministry. पवित्र आत्मा को लोग चाहिए ताकि वो लोगों को सेवकाई के काम के लिए अलग करे. ओके, मैं बहुत डाउटफुल होता हूँ उन लोगों को जो बोलते हैं मुझे प्रभु ने बुलाया है और कोई इंसान नहीं है जो उनकी गवाही दे सके. नहीं. I feel very doubtful for those people who say God has called me, but there is no man who can vouch for them, who can give their testimony. If God has called you, अगर परमेश्वर आपको then बुलाया, God will also raise men who will give your testimony. तो परमेश्वर उन लोगों को उठा के खड़ा करेगा जो आपकी गवाही दे सकते हैं. Okay. So separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग कर उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया. Okay. इसका एक्सट्रीम है एक, मैं जानता हूँ. एक्सट्रीम ये है कि कई लोग हैं उन्होंने अपने बाल उड़ा दिए ले हैंड करा करा के. I know there's an extreme to this. Many people have lost all hair by laying hands. मैं उनको कहता हूँ स्पिरिचुअल आत्मिक शुतुरमुर्ग. I call them spiritual ostriches. वो क्या करते हैं? What they उन्होंने do? शहर का कोई पास्टर नहीं छोड़ा. They have not left a single pastor in their city. और ये नहीं समझे मिल नहीं रहा कुछ, बस They- बाल उड़ रहे हैं.
They don't understand. They're not receiving anything except losing hair. ये एक्सट्रीम है इसका. ये उसका अलग छोर है. ले हैंड कराना लंगर नहीं है. Laying on of hands is not like distributing food. जिस हार्ट में, जिस परमेश्वर के दास के साथ कनेक्शन है आपके हार्ट में, वहीं बहाव होगा. Any man of God you have a connection within your heart is where you will receive जहाँ the flow. तार नहीं जुड़े हुए वहाँ कुछ नहीं होगा. Where the cables are not connected, there's no transfer ये that नहीं will take समझते place. कुछ लोग. That's what many people don't understand. ओके मगर ये नहीं है कि अरे अरे आपने हाथ रखवा दिया, अरे देखो देखो. नहीं. वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब बेटा अपने पिता से रोटी मांगेगा तो पत्थर नहीं देगा, जब मछली मांगेगा तो बिच्छू नहीं देगा. यानी जब आप एक अच्छा उम्मीद करते हुए परमेश्वर के भवन में जाते हो, आपको कुछ दुष्ट नहीं दिया जाएगा. When a child asks for food, bread, the father will not give a stone. When they ask for a fish, the father will not give a snake. When you come expecting a good thing, no evil will be given to you. ओके आप बहुत सारे लोगों को शायद ये कहानी नहीं पता होगी. ये हमारी मिनिस्ट्री की पास्टर सामर्थ, पास्टर मोनिका देवश्री, पास्टर देवश्री, दे नो इट. Many people don't know this, but एक मिनिस्ट्री है यूएस में. there is a ministry in the US. वो प्रॉफिट्स की एक मिनिस्ट्री है. It's a ministry of prophets. यीशु मसीह उनमें से एक स्त्री को अपीयर हुए Jesus appeared to one of the women in that ministry. और उनको बोला, इंडिया में एक बंदा है अंकित, उसको सेपरेट कर सेवकाई के लिए. And told them there's a person in India, his name is Ankit, separate him from the work, for the work of ministry. उन्होंने वहां से मुझे कांटेक्ट किया. They contacted me from there. जब भी एक व्यक्ति को अलग करना है खुदा को ना, खुदा एक बंदे को उठाएगा उस बंदे को अलग करने के लिए. When God has to separate someone, God will raise people to do that. ओके अनानियस को भेजा सौल के घर में. God sent Ananias to Saul's house. सो हाथों का रखा जाना, मेरे पीछे बोलो, ईसाई रीति रिवाज नहीं है. अगर रीति रिवाज की तरह आओगे यहाँ पे तो टाइम वेस्ट करोगे, अपना भी और मेरा भी. It's not a Christian ritual. If you do it like a ritual, you'll waste your and my time. ओके मगर अगर फेथ के साथ आओगे But if you come with faith, तो कुछ ट्रांसफर होगा. something will be transferred. सो मैं आपको अब कुछ चीज़, मैं आपको जल्दी से तरीके बताता हूँ जिससे मैं आपको एक अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ. I want to tell you about my life. केवल परमेश्वर के दासों का आदर करके Just by honoring different men of God, मैंने उनसे वो ग्रहण किया हजारों किलोमीटर दूर से. I have received many things from them thousands of kilometers away. ये कई लोग नहीं समझते. This is what many people don't understand. कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं, वो मेरे ड्रीम में आकर उन्होंने ले हैंड किया है मेरे ऊपर और एक टेंजिबल इम्पार्टेशन हुआ. Many men of God came into my dream and I received a tangible impartation. सोलोमन, कितने लोग जानते हैं सोलोमन को परमेश्वर ने बुद्धि दी? How many people know God gave wisdom to Solomon? आप जानते हैं सोलोमन को ड्रीम में परमेश्वर ने बात करी. Did you know that God spoke to Solomon through a dream? ड्रीम में उससे बोला मैं तुझे क्या दूं, Asked him in the dream what और should I ड्रीम give? में उसको बोला कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा. In the dream said, I'll मगर give जो you wisdom. ड्रीम में इम्पार्टेशन हुआ उसका प्रगटीकरण उसके जीवन में हुआ. But the impartation in that dream showed up in his life. ओके मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ सो आप समझ पाओ. जब मैं प्रभु में आया तो मैं एक हार्डकोर इवेंजलिस्ट था. When I came to the Lord, I was a hardcore evangelist. ऐसा कोई दफ्तर नहीं जहाँ पे मैंने नौकरी करी है जहाँ पे जो मेरे आसपास था मैं सबको प्रभु में मैंने बताया नहीं और प्रभु में लेके नहीं आया. Not even one office where I worked and didn't share the gospel with the people जो around me. पहला ऑफिस था जहाँ मैं काम करता था, The first office where I worked, वहाँ पे पास्टर सामर्थ शुक्ला काम करते थे. वहाँ पे पास्टर देवश्री काम करती थी और वहाँ पे पास्टर मोनिका काम करती थी. the senior leadership, the pastors used to work there. ओके सो मैं सड़कों में, पार्क में, बस में, मेट्रो में, हर जगह प्रचार करता था. I used to preach the gospel everywhere, on the streets, in the bus, everywhere. वो जो अनुग्रह था इवेंजलिज्म का, वो मतलब एकदम भड़क रहा था. That grace of evangelism was burning. और मैं प्रचार करता था. I would preach. उस टाइम तक मेरे माता पिता वो यहाँ पे बैठे हैं, वो प्रभु में नहीं थे. My mom, dad, they are here today. They were not in the Lord then.
और मैं जहाँ जाता मैं प्रचार करता। Wherever I went, I preached. फिर एक रात Then one night, एक परमेश्वर के दास हैं a man of God, और वो बहुत अच्छे टीचर हैं, he's a very good teacher. पूरी दुनिया यहाँ नहीं है, वो अमेरिका में है। He's not here, he lives in the US. बट मैं जब उनको देखता था तो दिल में बड़े आदर के साथ उनको रखता था। Whenever I would see him, I would have a lot of honor in my heart for him. और एक रात मेरे ड्रीम में वो आए One night he came to me in a dream, और मैंने देखा कि जैसे केवल सारे पास्टर्स बैठे हैं, and I saw like all the pastors are seated in the मगर meeting. मैं और मेरी वाइफ बिल्कुल अलग साइड में बैठे हैं Me and my wife are seated in a और वो प्रचार corner, कर रहे हैं। and he's preaching. और प्रचार करते करते And while preaching, वो स्टेज से नीचे उतरे he stepped down from the और stage, वो हमारी तरफ चलने लगे। started to walk towards. मैं ये ड्रीम में देख रहा हूँ I'm seeing this in a और dream, उन्होंने हाथ रखे मेरे और पास्टर मोनिका के ऊपर और प्रार्थना करने लगे। and he laid his hands on me and Pastor Monica. और मैं and सुबह prayed. उठा I woke up in the morning. और मुझे एक चीज पता थी, I knew one thing. कुछ टैंजिबल डिपॉजिट मुझे मिल चुका है। I have received a tangible deposit. ओके, अब हुआ क्या? Now what happened? उस संडे जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ हर रोज, That तो Sunday, as I read the Bible every day, मैंने बाइबल खोली। I opened the Bible. इट वॉज अ डिफरेंट बुक। वो एक अलग किताब थी उस दिन. मुझे वर्सेस आ रहे हैं इधर से उधर से इधर से उधर से, I'm getting और verses उस from दिन every के direction. बाद From that आई day. एंटर्ड इनटू द ग्रेस ऑफ टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैं वचन की शिक्षा देने के अनुग्रह में प्रवेश कर गया उस दिन से. ओके, मैंने आपको क्या बताया, जब आप प्रभु के साथ चलोगे I told तो you. टाइम टाइम पे माइलस्टोन्स आएंगे जहां पे उड़ेलना होगा आपके जीवन में। When you walk with the Lord, there'll be milestones where God will pour out on your life. ऐसे ही अलग अलग परमेश्वर के दास इतनी बार मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने मेरे सर में हाथ रख के प्रार्थना की। वो मुझे जानते भी नहीं है। Different men of God have come to me in my dream and they have laid hands on me. They don't even know me. Honor is the quickest way to receive what a man of God carries. आदर सबसे तेजी से परमेश्वर के जन के ऊपर जो है वो लेने का तरीका है. And that's why Satan hates it, and that's why there is so much of dishonor. और इसीलिए शैतान आदर से इतना नफरत करता है और इतना निरादर फैला दिया उसने. Okay. So, and obviously I know there are toxic leaders मैं in the जानता हूँ, church. कई कलीसिया में ऐसे अगुवे भी हैं जो खराब हैं. जो अगर कोई टॉक्सिक लीडर है If there's a toxic leader, तो मत जाओ उनके पीछे, सिंपल सी बात है। don't go after them. Simple. Run away from them. उनसे दूर भागो. मगर जस्ट क्योंकि कुछ टॉक्सिक अगुए हैं इसका मतलब ये नहीं सारे अगुए टॉक्सिक हैं। Just because there are some toxic leaders doesn't mean all the leaders. ये are ऐसा toxic. कहना है कि अगर कुछ पति अपनी पत्नी को पीटते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे पति अपनी पत्नी को पीटते हैं, If some husbands have beaten their wives, doesn't mean all husbands beat their wife. या सारे मर्द एक जैसे हैं। Or all men are. कई लोग बोलते हैं सारे परमेश्वर के दास ऐसे हैं। Some people say all men of God are the same. नो, नहीं. there are genuine men of God that God has anointed for this generation. सच्चे परमेश्वर के दास भी हैं जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया अगर इस पीढ़ी झूठे के लिए. हैं तो सच्चे भी हैं। If there are false men of God, there are true men of God also. ओके, अगर आपको एक नकली रोलेक्स दिखती है मार्केट में, वो नकली इसीलिए है क्योंकि एक असली रोलेक्स है जिससे कॉपी हुई है वो। If you see a fake Rolex in the market, it is there because there is a true Rolex. There is a real Rolex. हाँ, कोई 700 रुपए का नकली नोट नहीं बनाता इंडिया में। कोई नकली नोट है 700 का? नहीं। Nobody will make a fake note of 700 rupees. काउंटरफीट नोट बनेगा तो 500 का बनेगा। काउंटरफीट है ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि असली भी है। There is a counterfeit is the greatest proof that there is a real genuine thing. ओके, सो पहला, First thing, हैव फेथ। विश्वास रखो. जब आप ले हैंड कराने आते हो When you come, या ले हैंड करते हो, when you come to get hands laid or you're laying hands, डू इट बाय फेथ, विश्वास से करो. नॉट एज अ ट्रेडिशन। रीति रिवाज की तरह नहीं. ये जानते हुए कि एक ट्रांसफर हो रहा है। Knowing this that there is a transfer taking place. कोविड में देखा आपने लोग कितने संवेदनशील थे। Did you see during COVID people were जिसको so sensitive? कोविड है, अगर मैं इसके पास चला गया तो मुझे भी कोविड हो जाएगा। If someone had COVID and I went near them, I'll also have COVID. बस उतना विश्वास रख लोगे तो काफी है। If you can have that much faith, it's enough. आमीन। कि अगर आज मेरे सर पे जब हाथ रखा जाएगा, जो खुदा चाहता है वो नहीं जो मैं चाहता हूं, पर जो खुदा चाहता है आपके जीवन में उंडेलना, वो उंडेलना होगा यीशु के नाम में। That today as hands are laid on me, not that which I want, but that which God wants will be poured out on my life. ओके, सो पहला फेथ से करना है।
Firstly, do it by faith. दूसरा जो मैंने आपको बताया था, Secondly, उसको हल्का नहीं जानना, आदर के साथ करना है don't take it कि lightly. ये Do कोई it with रीति honor. रिवाज नहीं है। Do it with honor. It's no tradition. हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, मैं कहता हूँ भाई क्यों आया, पार्क में चल रहा है। Some people walk कोई in so आपके कान, casually. कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ, किसी ने नहीं बोला कि आपको करना है, बल्कि कम लोग आएंगे तो मेरे को कम थकान होगी। There is no force, no pressure that everybody has to get it done. If less people come, I'll be less tired. ओके, सो वही आए जो उसके महत्व को जानते हैं। Only those should come who understand the importance of laying hands. जादू नहीं है, It's no miracle, no आत्मिक magic. सिद्धांत है। It's a spiritual principle. तीसरा मैंने आपको बताया था ह्यूमिलिटी, Namrata. क्योंकि परमेश्वर, अगर जो बंदा ले हैंड कर रहा है अगर वो भी चाहता है, मगर जो बंदा करवा रहा है अगर उसके अंदर घमंड है, तो परमेश्वर रोक देगा उस भाव को, परमेश्वर नहीं होने देगा। Even if the one imparting or laying hands is desiring, but if the person coming to receive is full of pride, God will not allow that impartation. चौथा एक्सपेक्टेशन, उम्मीद करते हुए आओ। द बाइबल सेज द एक्सपेक्टेशन ऑफ राइचियस विल नॉट बी कट ऑफ। बाइबल कहती है धर्मी जन की जो उम्मीद है वो निराश नहीं होगी। ओके, सो एक्सपेक्ट करना है कि प्रभु मैं टैंजिबल रिसीव करके जा रहा हूं आज। Come expecting, Lord, I'm receiving tangible. ओके, और पांचवा Fifth. जो सबसे जरूरी है, The most important. इज टू हैव अ हार्ट टू सर्व। एक सेवा करने का। व्हाई डू यू वांट इम्पार्टेशन? क्यों चाहिए? So that you can serve the people of God, Impartation इसलिए चाहिए कि so परमेश्वर that you की can सेवा heal करो, the sick, ताकि बीमारों को चंगा so that you can set free those who are oppressed, जो सताए आजाद करो, so that you can walk as a deliverer. एक छुटकारा देने वाले की तरफ चलो। Okay, मैं आज आपको सब बता रहा हूँ clearly। I'm telling you clearly. बहुत सारे mantles हैं, बहुत सारे ग्रेसेस हैं परमेश्वर के दासों के, जो मैंने रिसीव करे हैं अपने जीवन में प्रभु के साथ चलते हुए। आज ये मेरी प्रार्थना है कि वो आपके ऊपर उतरे। There are many mantles and many graces that I have received from different men of God, and it's my prayer today that you will receive them from me. Okay,